Good morning, students. In previous class, we have studied the method of valuation of goodwill, and the name of method is super profit method. And in today's class, we will do the capitalization method of calculating value of goodwill. This is the last method of this chapter of calculating the value of goodwill. First of all, we understand what is capitalization method. So, under capitalization method, capitalized value of business profit has to be calculated. यानी यहाँ पर हमें capitalized value निकालनी होती है of business profit. Whatever will be the business profit, उसकी हम capitalized value निकाल देते हैं. यानी सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम दो मेथड करने वाले हैं. There are two methods of calculating goodwill as per capitalization method. One is capitalization of average profit. One is capitalization of average profit and another is capitalization of super profit. In both the methods, we are just capitalizing the value of profit. Here is the capitalization of super profit. Here is capitalization of average profit. So as in line 1 it is said, under capitalization method, capitalized value of business profit has to be calculated. It is based upon the average profit earned by the firm and rate of normal profit. It is based on जो ये capitalized value होती है ये based होती है average profit which is earned by the firm and the rate of normal profit. Rate of normal profit has been explained in the previous class. So on these two topics, the capitalized value of business profit is based. Capitalized value means, अगर हम जानना चाहें, capitalized value means the amount of capital needed to earn a profit equals to firm's average profit based upon the normal rate of return. Based upon the normal rate of return. Suppose a firm is earning 1 lakh as profit. Firm has earning or earned an average of 1 lakh profit every year. And the normal rate of return in the industry is 10%. अगर हम एज्यूम करें कि एवरेज प्रॉफिट फर्म का 1 लाख है और मार्केट में जो नॉर्मल रिटर्न है, जो नॉर्मल रिटर्न सभी इंडस्ट्री अर्न करती हैं वो 10% का रिटर्न है, तो लगभग कितना पैसा यानी कितना कैपिटल हमें चाहिए होगा 1 लाख अर्न करने के लिए? तो सिंपल सी बात है, जो 1 लाख प्रॉफिट हम कहें कि कैपिटल वैल्यू कैपिटल 10 लाख कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू हमारे पास आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. अगर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड कर दें हम अपने रेट ऑफ रिटर्न से इनटू 100 कर दें तो हमारे पास वैल्यू मिल जाती है कि कितना हमें कैपिटल चाहिए होगी. अगर 1 लाख हमने अर्न किया है और 10% रिटर्न है तो ऑब्वियस सी बात है जो कैपिटल लगी होगी वो 10 लाख होगी. 10 लाख होना चाहिए तब आपको नॉर्मल इंडस्ट्री के हिसाब से 1 लाख का रिटर्न मिलेगा. Thus it is known as capitalization method. इसी तरीके से हम इसे capitalization method कहते हैं. इसके दो तरीके हम आगे देखेंगे. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं अपने प्रॉफिट की कि कितना कैपिटल होना चाहिए. फिर हम चेक करते हैं कि फर्म में एक्चुअल कैपिटल लगा कितना हुआ है और जो डिफरेंस है वो गुडविल होता है. कैसे करते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं, मेथड देखते हैं. फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे. अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज calculated or ascertained by deducting to actual capital employed, that is net assets. Actual capital को हम net assets भी कहते हैं in the business from the capitalized value of average profit on the basis of normal return. तो इस तरीके से हम निकालते हैं. इसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. जैसे अब तक हमने एवरेज या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला था सेम वैसे ही हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. उसके बाद हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. उसके बाद हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. यानी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि 1 लाख इज योर प्रॉफिट, 10% इज रिटर्न तो 10 से डिवाइड कर देंगे इनटू 100, वैल्यू विल बी 10 लाख. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर नॉर्मल रिटर्न इज 10 lakh rupees of capital. Then we will calculate the actual capital which is employed in the business, that is net assets. अभी कैसे निकालते हैं? It is
by deducting outsider liabilities from total assets excluding goodwill. It means we will take total of assets, but if there is any goodwill, we will leave that. Total assets minus outsider liabilities. Point to be noted. Only outsider liabilities is to be deducted. By doing this, we will get net of assets. जब हमें net assets मिल गया, इसे हम actual capital employed भी कहते हैं. Then the last step, value of goodwill is total capitalized value of firm. टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस जैसे हमने निकाला था स्टेप 2 में, जिसको मैंने आंसर बताया था for 10 लाख. और फिर हम देखते हैं फर्म के अंदर एक्चुअल में कैपिटल लगी हुई कितनी है. अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू 10 लाख चाहिए थी और फर्म ने 9 लाख ही लगा के उतना प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो इट मीन कंपनी के पास 1 लाख की गुडविल है. आई एम रिपीटिंग द एग्जांपल कि हमने यहाँ से निकाला था कि 1 लाख प्रॉफिट है, 10% नॉर्मल रिटर्न है, यानी बिजनेस में लगभग 10 लाख रुपए लगे होने चाहिए. हमने देखा बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन जो हमारे एसेट्स है उसने 9 लाख इन्वेस्टमेंट करी इन नेट एसेट्स, यानी आप कैपिटल लगाया और सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लिया. तो इट मीन 10 लाख की जगह अगर फर्म 9 लाख में उस टारगेट को अचीव कर पा रही है, तो 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. फॉर दिस clarification, particular clarification, I am taking illustration 1. Our business has earned average profit of 48,000 during last few years and normal rate of return is 12%. हमें given है average profit दे रखा है निकाल के 12% हमारा normal rate of return है. हमें कैलकुलेट करना है value of goodwill by capitalization of average profit method. Average profit को capitalize करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और जो फर्म की नेट एसेट्स है वो हमें बता रखी हैं 2,80,000. जो हमारे ये स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स हम कंप्यूट करते हैं. फर्स्ट स्टेप था हमारा एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करना, जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, तो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है. सेकंड है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो कैपिटलाइज्ड ऑफ वैल्यू जो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इट इज एवरेज प्रॉफिट दैट इज 48,000 हियर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, सो इट विल बी 4 लाख. गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज 4 लाख. एक्चुअल बिजनेस की जो कैपिटल है वो 280 है, 280 इसमें से माइनस कर देंगे, यू विल गेट 1,20,000 एज गुडविल. दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन फिगर्स कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रखा है इसने. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, एसेट्स दे रखी हैं 970 एंड लायबिलिटीज आर 550. सो एज पर द स्टेप्स, स्टेप 1 कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. स्टेप 2 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दैट इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. सो एज पर दिस कैलकुलेशन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज 6 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम बात करें, एसेट्स 970 एंड लायबिलिटीज 550, 420 इज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दैट इज 6 लाख माइनस एवरेज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 420, सो 180 here is the value of goodwill as per capitalization method. इस इलस्ट्रेशन को मैं अभी जो सेकंड मेथड कराऊंगा उसके लिए भी यूज करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना इसे. नेक्स्ट मेथड एज पर कैपिटलाइजेशन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. वहां पर हम कर रहे थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बट इन दिस मेथड इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. क्वेश्चन विल से कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है. एज द नेम सजेस्ट दिस मेथड ट्राइज टू असेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड. ये मेथड ये जानना चाहता है अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू अर्न सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल एक्स्ट्रा चाहिए. सो this the value of capital is, so this value of capital is known as goodwill. यहाँ पर कई बच्चे क्या है दोनों मेथड में आपस में मिक्सअप करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं. इसीलिए जो थ्योरी मैंने हाईलाइट करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और यहीं से क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन करेंगे कैसे. यहाँ पे हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट अर्न होता है ड्यू टू इफ फर्म हैव गुडविल. तो इसलिए अगर हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो एक्स्ट्रा एफर्ट से मिला है. तो ऑब्वियसली बात है जो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी उतनी ही पैसा हमें कम लगाना पड़ा होगा.
इसीलिए हमें गुडविल मिली है। तो हम स्टेप्स में कर देखते हैं कैसे से करेंगे। फर्स्ट इज कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड से पहला स्टेप होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालो, ठीक है, विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी। हम यहाँ पर टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करके निकाल सकते हैं, या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स के अलावा जो आइटम है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये हम माइनस कर देंगे तो उससे भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल सकता है। तो एज पर द सिचुएशन या एज पर क्वेश्चन में जो भी दिया है हम कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। सेकंड इज कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट, जितने भी ईयर्स का हमें निकालना है फ्यू ईयर्स, यानी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। देन कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का हम सभी को पता है हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाला है इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। देन कंप्यूट सुपर प्रॉफिट एंड वी नो दिस सुपर प्रॉफिट इज ड्यू टू गुडविल ऑफ द फर्म। इफ देयर इज सुपर प्रॉफिट देन फर्म हैव सम गुडविल and the method is says capitalization of super profit. So just in order to compute the goodwill, super profit divided by normal rate of return into 100, this is the value of goodwill. इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम सुपर प्रॉफिट निकाल कर सीधा नॉर्मल रेट से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें गुडविल की वैल्यू मिल जाती है। चलो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1,50,000 गिवन एवरेज प्रॉफिट, टोटल टेंजिबल एसेट्स फर्म की 14 लाख है एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज 4 लाख है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रिटर्न जो चल रहा है वो 10% का चल रहा है ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल बतानी है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एज पर गिवन इन द क्वेश्चन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो इट इज टोटल टेंजिबल एसेट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी 14 lakh minus 4 lakh is 10 lakh is our capital value of capital employed. After that normal profit compute करने के लिए capital employed into rate divided by 100. So in this question rate is 10%, 10 lakh, 10% is 1 lakh. Super profit is average profit given in the question 1,50,000. So super profit is average profit minus normal profit. So 150 minus 1 lakh is 50,000 is my super profit. Goodwill is super profit divided by rate of return into 100. So 50,000 divided by 10 into 100, you will get 5 lakh is the value of goodwill. I think it is clear to all how we compute the value of goodwill as per super profit method. Now illustration 2. From the figures given in the illustration 2 above, calculate goodwill according to capitalization of super profit. अगर हम बात करें जो ये वाला एग्जांपल था दिस वन, ये हमें वैल्यूज गिवन है और इन वैल्यूज से हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हमें एक्चुअल एवरेज कैपिटल गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हमें आराम से मिल जाएंगी वैल्यू जैसे यहाँ पे मिली हुई है। सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड इज एसेट्स minus liabilities, you will get capital employed 4,20,000. Super profit is average profit minus normal profit. Normal profit निकालने का तरीका था capital employed into R by 100. So capital employed is 420, R by 100 is 15 by 100. So value is 63,000. So 90,000 is average profit. Normal profit is 63,000. By taking the difference, super profit is 27,000. Value of goodwill as per the method is super profit into 100 divided by rate of return. So 27,000 divided by 15 into 100 will be 1,80,000. So 1,80,000 is the value of goodwill in this question. So this question can be done by both methods because all the required things or values are given as per capitalization of average profit and capitalization of super profit also. That's why I use this question to do both methods. Then taking another example so that this topic is very clear to you. Illustration 3. A firm having assets of 25 lakh and liability of 11 lakh earns
annual profit of 2,40,000. The normal rate of return being 15%. Calculate the amount of goodwill by capitalization of super profit method. Very simple. First of all, we have the average profit, no problem of that. Then we will compute the capital employed. It is assets minus liabilities, इसे हम net assets भी कहते हैं. तो 25 lakh minus 11 lakh is 14 lakh and 14 lakh का फिर हमें लेना है normal profit. So normal profit is 14 lakh into rate by 100, 15 by 100, value is 2,10,000. Super profit is average profit minus normal profit. Average profit is 240 given minus normal profit अभी हमने compute किया था 210. The difference is known as super profit, that is 30,000. After that, to compute the value of goodwill, super profit into 100 divided by rate or divided by rate into 100. So super profit is 30,000 divided by 15 into 100. The amount is 2 lakh. 2 lakh is the value of goodwill in this question. I am taking another example. A firm having assets of 10 lakh and liabilities of 4 lakh. So we can compute the value of capital employed. 10 lakh minus 4 lakh is 6 lakh. Earns annual profit is 60,000 earn कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. Normal rate of return is 10%. Calculate amount of goodwill by capitalization of super profit. देखते हैं. Average profit is this one. Capital employed is 10 minus 4, 6 lakh. Normal profit is 6 lakh, 10% into normal return, that is 60,000. Super profit is average profit minus normal profit. 60,000 is the average, normal profit is 60,000. The value is nil. Since the value is nil or zero, the goodwill of the firm is also zero. So this type of question may also come in the exam. Never think that in each question there will be a goodwill. इस type of question हो सकते हैं goodwill इसकी zero भी हो. Since firm is earning, अब क्यों है थोड़ा सा लॉजिक में पता होना चाहिए. कई बार ऐसे हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछ लेता है. Since the firm is earning only normal rate of return, फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है जो बाकी इंडस्ट्री में हर कोई अर्न कर रहा है. सो वी कैन से देयर इज नो गुडविल टू द फर्म. इसीलिए फर्म के पास कोई गुडविल नहीं है क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री में हर कोई अर्न करता है. अगर आप भी वही अर्न कर रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है. एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा इनकम और प्रॉफिट देन यू हैव नो गुडविल. दिस इज द मीनिंग ऑफ गुडविल एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड. आई एम टेकिंग हियर द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द टॉपिक. यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है, हमें कुछ कैसे निकालनी हम देखते हैं. A firm earns 25,000 as its annual profit. The rate of normal return is 10%. Assets of the firm is 2 lakh. Value of goodwill is given 1,12,500. Find the value of outsider liability. So whatever is given, हम क्वेश्चन रिवर्स को स्टार्ट करते हैं. अगर हमें गुडविल गिवन है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है. तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. तो फर्म की जो कैपिटल आ जाएगी वो ये आ जाएगी इस फॉर्मूले से. देन गुडविल की बात करें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स. अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये तो शायद कैपिटलाइजेशन ऑफ ये कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का है, हम सुपर प्रॉफिट कर रहे थे. जानबूझ के मैंने यहाँ ये इलस्ट्रेशन दिया है ताकि आप अंडरस्टूड कर सको. यहाँ पर आपको बेटा कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो बता रही है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है. आपको सिंपल जो वैल्यू निकालनी है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको सुटेबल हो. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में थोड़े स्टेप ज़्यादा हैं, इसलिए हम नॉर्मल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने एवरेज प्रॉफिट लिया, तरीका लगाया, तो हमें आपके पास आ गया टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू. ये कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है फर्म को इस अमाउंट को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दैट इज 2,50,000. गुडविल की बात करें वो होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट ऑफ एसेट्स. नेट एसेट्स इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. सो गुडविल हमारे पास है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकाल ली है. नेट एसेट्स इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. फॉर दैट वी हैव एसेट्स आल्सो. नेट एसेट्स की वैल्यू हम निकाल लें तो ये आ गई है. नेट एसेट्स इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज. This is the value of net assets as computed here. Total assets given in the question 2 lakh minus outsider liability we have to compute. By solving this equation we will get outsider liability is 62,500. This is the way how we compute if something other than value of goodwill is asked in the question. So I think the topic is clear to you, and this is the last topic of this chapter. In next video I will take up the next chapter. Thank you.